ठीक है, तो काफी सारी बातें Perfect. हैं, Yeah, काफी now we सारी are बातें okay. करनी। चलो ठीक है। Okay, सो I was just trying to tell you all that how I started my journey. So यस I did यस my प्लीज। bachelor's from Mumbai, and then the same year, I was really fortunate. The same year, I joined Mumbai Cricket Association for the senior women's team, and that's how my journey in cricket has started. That was 2009. This is ओके। 2020, so it's been वाओ। around 11 years in 11 cricket. लॉन्ग इयर्स। Yeah, yeah, long years. And Bangladesh happened for me 2 years back. So that was a very special assignment, I would say. I mean, I got to learn a lot doing the international team. So yeah, that was really nice to have another cultural experience. And the girls were a little different. The whole administration part was really different. So it was a good करेक्ट experience, I would say. It करेक्ट। was tough. अनुजा, so apart from cricket, you have also worked with a lot of other sports. How is it? Yes. How is the sport different, and how are the injuries different in both the sports? Or let's say if you had to compare cricket with kabaddi or some other Mm. sports. So in Kabaddi, we work like medical coordinators, kind of medical officer kind of job. So we don't do much hands-on with PKL, but at the Okay. clinic, yes, we see a lot of players. So Vishal, cricket is a non-contact sport, right? Mm-hmm. Like Mm-hmm. technically, it's a non-contact. We are not colliding against Yeah. each other while playing cricket. जैसे Yeah. फुटबॉल है वहाँ पे थोड़ा टैकल होता है, थोड़ा Mm. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, रग्बी है, Yeah. टोटल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है. So Correct. cricket essentially is a non-contact. So cricket के जो injuries होते हैं generally they are related to overuse. कि आप Okay. एक ही प्रकार के movement बार बार कर रहे हो over the time. Uh, आप बैट्समैन हो तो नेट में you are batting for let's say 30 minutes, 40 minutes. If you get lucky, you can do more than that. If you have bowlers, if you're a bowler, you'll keep bowling. You keep practicing your bowling action. If you're a correct. wicket keeper, for hours you're doing keeping. If it's a test match, the inning goes longer. You are Mm. keeping for sometimes 2 days. Mm. So Mm. all these injuries are generally related to overuse patterns. So हम Okay. लोग बोलेंगे the technical language में cricket injuries are overuse injuries. Whereas Okay. दूसरे जो games होते हैं जो contact sports है उनमें accidents हो सकते हैं, trauma हो सकता है. So they are Mm. more like contact based Mm. injuries. या फिर Mm. जैसे बैडमिंटन है, मैं बहुत सारा बैडमिंटन भी किया है. तो बैडमिंटन अच्छा। इज लाइक अगेन नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, बट अपने अपने गेम के खुद के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, Mm. डिफरेंसेस होते हैं. जैसे Mm. बैडमिंटन इज डन इन 30 minutes, 40 minutes, मैक्सिमम लाइक एन आवर द गेम इज डन. बट क्रिकेट Uh-huh. जैसे आपको पता है द Mm. लॉन्गेस्ट फॉर्म इज 5 days, then we have 1 day, then we have Mm. 2020, now Mm. T10, we have T10 also, which is like a very quick format. So Correct. so basic fact अगर साइंस देखा जाए तो बेसिक Mm. फैक्ट ये है कि अपने इंजरी सारे नॉन कॉन्टैक्ट है, ओवर यूज है. दे मोर लाइक Okay. टेक्निक रिलेटेड कि फास्ट Uh-huh. बॉलर्स में डिफरेंट है, स्पिन Uh-huh. बॉलर्स डिफरेंट इंजरीज है, या फिर आप Uh-huh. बैट्समैन हो तो आपका टॉप हैंड कौन सा है, आपका स्टाइल क्या Mm. है बैटिंग का, उसके हिसाब से Mm. आपके इंजरीज हो सकते हैं. तो फॉर अ फिजियो इज वर्किंग इन क्रिकेट, यू हैव Uh-huh. टू consider lot of factors, I would say, Mm. rather Mm. than other sports. So cricket is a very Okay. unique sport, I would say. It's like really unique. So which sport have you enjoyed working the most? आपने बहुत सारे sports किया है, so which sport has actually given you that liberty to? I think I would still go with cricket Okay. because it's been a very special journey. I have seen international cricket as well. Mm. I Mm. have seen the girls growing Mm. from Correct. 2009. मैं अगर आपको जस्ट एक हिस्ट्री बताऊंगी तो 2009 आई ज्वाइन मुंबई क्रिकेट. 2010 में मेरा एनसीए का लेवल 1 जो वहाँ जब एक क्रिकेट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन जो होता है Okay. एनसीए से, नेशनल क्रिकेट अकेडमी से, तो वो हुआ था 2010 में. एंड विशाल 2010 was the first Uh-huh. year when Uh-huh. women's cricket had a camp inside NCA, held Correct. inside NCA. That was the Okay. first camp ever. Okay. Okay. तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स थे, जो सारे हमारे जो मेन एथलीट्स है फीमेल, Mm. Mm. वो सारे वहाँ पे थे. तो 2010 से 2017-18 मेरा लास्ट एक्टिव Mm. असाइनमेंट था बीसीसीआई के साथ. तो Mm. तब से वो जो जर्नी देखा है मैंने, हाउ दीज गर्ल्स हैव डेवलप्ड, Mm. नॉट जस्ट क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर, Mm. as person, as human being, they have developed so much. So Absolutely. that has been really special because I'm connected that way
to the sport, that I have seen those athletes growing. So it's a very special feeling. Great, great. I'm sure you have seen a lot in women's cricket. आप काफी पहले से इन्वॉल्व है, जब women's cricket शायद इतना पॉपुलर नहीं था इंडिया में. Tell me, what are the common injuries that the female cricketers face? We are sticking only or very specific to female cricket injuries. उनको ऐसे कौन से इंजरीज होते हैं और बहुत से कौन से कॉमन है? तो विशाल, एक्चुअली ऐसे देखा जाएगा ना तो फीमेल एथलीट, जो हम लोग जेंडर, दो जेंडर्स है, मेल एंड फीमेल, तो आप फीमेल एथलीट देखेंगे तो itself they are very special, like they are a little different than male athletes. So it's not just about cricket, सारे स्पोर्ट्स में देखा जाएगा तो कुछ पैटर्न्स जो होते हैं इंजरी के, वो फीमेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं, या फिर फीमेल एज अ ग्रुप वी हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल. जैसे आपने सुना होगा ACL के बारे में. करेक्ट. जैसे आपको पता है कि काफी अब हमारे फीमेल क्रिकेटर्स है who have struggled with ACL injury. करेक्ट. कुछ लोगों का एक ACL इंजरी हुआ है, कुछ के 2 ACL इंजरीज हो गया. तो जो ACL इंजरी बोला जाता है स्पेक्ट्रम, दैट इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स ओवरऑल, नॉट जस्ट क्रिकेट में. या फिर फीमेल बॉडी जो है वो मतलब जो लिगामेंट्स जो रहते हैं, जो लिगामेंट्स बोलते हैं हम लोग, वो थोड़े नेचुरली लैक्स रहते हैं. तो वो लिगामेंट लैक्सिटी रिलेटेड जो इश्यूज है, जैसे एंकल स्प्रेन्स होना या फिर नी ट्विस्ट होना और लिगामेंट इंजरीज नी के अराउंड, ये सारी चीजें भी फीमेल्स में थोड़ी सी, मैं बोलूंगी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है. कुछ अपनी लड़कियां हैं फीमेल प्लेयर्स जिन्होंने आफ्टर डिलीवरी कम बैक किया है गेम में. आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम राइट नाउ, बट you know that there are few females who came back into the game. Let's say take the biggest example, Serena Williams, who made a successful comeback and even more successful comeback after delivery. So females में वो factor भी बहुत जरूरी है कि आप क्या planning है, आपका family planning क्या है. If your घर वाले आपको इजाजत दे रहे हैं नहीं खेलने के लिए और फिर आप pregnancy के बाद comeback करते हो, तो that becomes like a special case itself for females. Otherwise just specific cricket की बात करेंगे तो आजकल इनफैक्ट दोनों मेल एज वेल एज फीमेल्स में इंजरीज का रेट बढ़ते जा रहा है, because game is getting competitive. Game is becoming so competitive and game is becoming faster, right? पहले देखेंगे कि सिर्फ टेस्ट होता था, वन डेज होते थे. आजकल लड़कियों में भी ज्यादा T20 खेल रहे हैं rather than even one days. Correct. Even if you see at club cricket and local level. So the game has become really fast paced, and because of that we see all sort of injuries increasing in male as well as female. तो जैसे पहले देखा जाता था, मतलब मैंने तो पहले 2009 हो 10 हो, वो जो अर्ली इयर्स थे तभी ओवरलोडिंग के इश्यूज फीमेल्स में इतने नहीं देखे थे. लेकिन जैसे लेटर, मतलब डेकेड का जो लेटर पार्ट है उसमें वो भी सारी चीजें ज्यादा देखी जाती है. जैसे बॉयज में स्पाइन इंजरी बहुत होते हैं, तो पहले लड़कियों में इतना नहीं देखा जाता, लेकिन लड़कियां भी आजकल दे वांट टू बॉल फास्टर, they want to bowl bouncer, they want to hit the ball hard. So they have started also putting in a lot of effort. Yes, you have seen the difference, right? Earlier they were reluctant to dive. They were reluctant to, while taking a run, they are reluctant to do that slide. But now they are trying to catch up with boys, more females watching male cricket and getting brave, confident. They are stronger now compared to earlier days. So cricket में जैसे देखा जाएगा विशाल ना, तो स्पेसिफिकली बात करेंगे तो सारे इंजरीज जो बॉयज में होते थे लोडिंग की वजह से, वो आजकल गर्ल्स में भी हो रहे हैं. अब वो फीमेल्स में भी हो रहे हैं. यस, तो पहले इनफैक्ट कम होते थे कि जैसे फ्रैक्चर्स है, फील्डिंग में फ्रैक्चर्स होना. जैसे आपको पता है बॉयज क्रिकेट में वेरी कॉमन, लोकल लेवल पे भी देखो, आपने भी खेला होगा, आपने भी कभी एक हाथ पर कभी फिंगर्स को इंजरी हुई होगी. गर्ल्स जितना इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना इंटेंसिटी उनके गेम का बढ़ रहा है, ट्रेनिंग का बढ़ रहा है, नॉट जस्ट गेम, ट्रेनिंग में आप देखो
Gym training, they are getting heavy into heavy gym training. You can see visible difference, isn't it? Absolutely. यही जो set of girls है जो 2010, 12 में खेलते थे और आप आज उनको 2017 वो वर्ल्ड कप या अभी का वर्ल्ड कप है आप देखो उनको they are much stronger, they are stronger athletes. Absolutely. वो जो गैप होता है ना कि मेल्स में यही इंजरी पैटर्न दिखेंगे, फीमेल्स में यही दिखेंगे, मेरे हिसाब से क्रिकेट में वो थोड़ा कम हो रहा है. और जैसे मैंने थोड़ी चीजें बोली कि समथिंग लाइक ACL इंजरी जो एनीवेज फीमेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं या फिर लिगामेंट रिलेटेड, लैक्सिटी रिलेटेड इंजरी, वो स्टैटिस्टिक्स तो है ही, लेकिन बाकी जितना गेम कॉम्पिटिटिव हो रहा है, गर्ल्स आर आल्सो शोइंग सिमिलर पैटर्न. ट्रू. और ये जो इंजरी के पैटर्न्स है, आई एम श्योर ये और बढ़ने वाले और शायद और बिकॉज द गेम हैज इवॉल्व्ड, फीमेल क्रिकेटर्स हैव इवॉल्व्ड, तो आगे जैसे जैसे और ये फास्ट पेस होगा, आई एम श्योर कि और बहुत सारी अलग अलग इंजरीज हो सकता है हमने जो अभी तक सुनी नहीं है वो भी हो जाए. मतलब जैसे मैंने बोला बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो वी विल सी ऑल दोस क्रिकेट इंजरी पैटर्न्स व्हिच वी वर सीइंग हाई लेवल क्रिकेटर में, हाई जो इंटेंसिटी उनका ज्यादा है, इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं. जैसे गर्ल्स विल आल्सो देयर कैलेंडर विल गेट much busier, I'm sure, in coming days. True. So they will also undergo a lot of stress, cricket stress. Correct. Overuse injuries. Correct. So now that we know what the problem is, let's talk about the solutions. अभी ये जो solution है, एक तो ये हो सकता है कि see there's a beautiful saying, prevention is better than cure. Right. So हम ऐसा क्या करें to prevent कि ऐसा हो ही नहीं, सबसे पहली बात तो. And the next question is कि suppose अगर कोई हो भी गया, so what is the first and the best thing that a female or a male or anybody, any cricketer can do in order to mitigate the effects of that particular injury? So prevention की अगर बात करेंगे तो generally like हमारे world में which is more professional, which is more structured, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इंजरीज है क्या, कितने इंजरीज के पैटर्न्स है, कौन से जॉइंट्स में हो रहा है. तो एक वो आइडिया लेना जरूरी होता है कि हर एक स्पोर्ट्स में व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज डू यू गेट टू सी फ्रीक्वेंटली. तो आप उनके पैटर्न्स है वो लिस्ट डाउन करते हो, आप डेटा कलेक्शन करते हो क्रिकेटर से ओवर द टाइम कि आपके कौन कौन से इंजरीज है. और वो इंजरीज के जब भी आपका लिस्ट बन जाता है तो देन यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट सोल्यूशन कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं. तो क्रिकेट में देखा जाए तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, इफ यू गो टू सी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बिकॉज द गेम इज इट्स नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट, राइट. देयर इज बॉलिंग, देयर इज बैटिंग, देयर इज कीपिंग, देयर इज फील्डिंग. आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जरूरी है. जनरली हम लोग डे टाइम में गेम खेलते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज अनलेस इट्स प्लेड अंडर द लाइट्स. तो आपके हीट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो बहुत जरूरी होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दिस डिफरेंट फैक्टर्स, आपका ग्राउंड कंडीशन, ग्रास कंडीशन क्या है, कितना इवन ग्राउंड है, अनइवन है, आपके बाउंड्री रोड प्रॉपर्ली प्लेस्ड है या नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग बोर्ड कितने पास है, कितना डिस्टेंस है. क्योंकि उससे पोल्यूशन पे भी काफी बड़ी इंजरीज हुई है, हमने एक्चुअली देखी भी है. Yes, definitely. So all these factors you have to consider in a game like cricket, which is played on a bigger ground. It's a structured sport, departments. So बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जब हम लोग क्रिकेट में इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं. There are a lot of things to think about. ये सारी चीजें हो गई. और ऑल्सो आपको देखना है कि क्रिकेटर का एज क्या है. जैसे क्रिकेट में जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है, जो बच्चों का एज ग्रुप है, लेट्स से अराउंड 12-14 इयर्स के बाद, फास्ट बॉलर स्पेशली, तो उनमें जो स्पाइन में स्ट्रेस रिएक्शन, आपने कभी सुना होगा कि स्पाइन के बहुत इंजरीज होते हैं फास्ट बॉलर्स को. तो बोन पे लोडिंग बहुत होता है बार बार रिपीटेटिव एक्शन की वजह से, या फिर आपका एक्शन थोड़ा फॉल्टी होता है उसकी वजह से आपका स्पाइन लोडेड है. तो वो जो एक एज ग्रुप है ना, वो इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग टू वर्क ऑन और वर्क विथ. जो आपका एक वो एज ग्रुप है फास्ट बॉलर्स का, मेल है या फीमेल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट एज ग्रुप. तो उनके लिए प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होते हैं. तो लेट्स से हम लोग अगर एक जनरल कंक्लूजन पे आए
तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर डिसाइड कंसिडर किए तो हीट रिलेटेड जो इश्यूज है, तो आपके पास अगर फिजियोज है, let's say we are talking about cricketers, so cricket is a very structured sport, you know, BCCI sitting at the top, then there are state academies, state academies के नीचे club cricket होता है हर एक state का. Most of the time आजकल, because the game is so advanced and the game is, you know, like very well organized in India, हम लोग ने तो एटलीस्ट देखा है कि क्लब तक आपके पास फिजियोज तो रहते हैं मोस्टली. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मेजर सिटीज है, मुंबई में तो एटलीस्ट काफी क्लब के पास आजकल फिजियोज होते हैं. छोटे सिटीज में मे भी नहीं रहेंगे. अगर फिजियो आपका ऑन ग्राउंड अवेलेबल है तो ये आपके जो सारे इंजरी मैनेजमेंट, इंजरी प्रिवेंशन, ये जो सारी चीजें है ना, दैट कैन बी डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बिकॉज आपको कोई सुपरवाइज करने वाला होता है, आपको कोई मॉनिटर करने वाला है, आपके कोचेस, आपके फिजियोज, आपके ट्रेनर्स जो है वहाँ पे. तो आपको मैंने अगर बोला कि जैसे दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप इज ससेप्टेबल फॉर स्पाइन इंजरी, तो प्लेयर ने तो खुद का ध्यान रखना ही है कि मैं कितने बॉल्स डाल रहा हूँ, चाहे नेट सेशन हो या मैच हो. उन्होंने एक डायरी मेंटेन करना है कि हम जनरली आई बॉल. This is how we ask our cricketers, you know, to take care of themselves. But at the same time, आप अगर हायर लेवल पे जाओगे, स्टेट है या इंटरनेशनल है, तो आपके लिए कोई वो दूसरा मॉनिटर कर सकता है कि आपने सिर्फ जाके वहाँ पे आपका नंबर लिखना है कि मैंने इतने बॉल या इतने डिलीवरीज डाले थे नेट में या मैच में, एंड समवन विल मेक सेंस ऑफ दैट डेटा फॉर यू. या फिर आप जब भी फिजियो के पास मतलब आपका वीकली लोड भी मॉनिटर होने वाला है, राइट? तो वीकली लोड मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपका ऊपर नीचे अगर हो गया तो आपका फिजियो या ट्रेनर आपको आके बता सकता है कि लुक यू हैव एक्सीडेड योर डिलीवरी नंबर. या फिर आप अगर यू आर इंटेलिजेंट क्रिकेटर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू विल नो कि मैंने कहीं पे ज्यादा किया है, तो मे बी आप जाके अपने फिजियो से मिलिए. कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो फिजियो चेक करेंगे कि शोल्डर है, जैसे हिप है, क्रिकेट स्पेसिफिक असेसमेंट होता है. तो वो हम लोग करके, जब इंजरी नहीं हुई है ये स्टेज पे, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी असेसमेंट कर लिया और फिर उनको थोड़े सोल्यूशन दे दिए, टिप्स दे दिए कि आपको ये करना है एक्स्ट्रा आपके ट्रेनिंग सेशन में, या फिर आपको ये करना है आपके रिहैब सेशन में एक्स्ट्रा. ये एक तरीका होता है प्रिवेंशन का. दूसरा तरीका ये है कि आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर हो और आपके पास पूरा सपोर्ट स्टाफ है आपका इन एग्जिस्टेंस, तो आपका हर सीजन के पहले टेस्टिंग होता है. तो जैसे हमारे सारे जो क्रिकेटर्स है स्टेट के, इंटरनेशनल बीसीसीआई के जो सारे क्रिकेटर्स है ना, उनका सीजन से पहले उनके अकेडमीज में टेस्टिंग होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग, प्री सीजन स्क्रीनिंग, सीजन स्टार्ट होने से पहले. Vishal, you can hear me? There's no disturbance. I can hear you. There's no disturbance. No. Okay. So वो जो screening है cricket में, that's also something which is very unique to our sport. बाकी जो associations है, उनका इतना structured pattern नहीं है ये करने का. But cricket में सारे state associations में It's been years now that norm has been passed कि सबका स्क्रीनिंग होता है. फिर उनको स्क्रीनिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से फिजियोज उनको प्रोग्राम देंगे, उनके ट्रेनर्स उनको प्रोग्राम देंगे. फिर फिजियो और कोच फिजियो और ट्रेनर कोच के साथ बैठ के बात करेंगे कि कुछ वर्क करना है, या फिर ये इसको ऐसे ऐसे इंजरीज है, ऐसे ऐसे असेसमेंट में प्रॉब्लम है जिससे इंजरी हो सकता है, तो हम पहले से ही उसका प्रिवेंशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे. So something like this system. One thing which is common, अनुजा, की काफी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आप काफी स्ट्रेस कर रहे हो उस पॉइंट पर. Yes, internal also, like आपका जो लोडिंग मॉनिटरिंग है, वो आपका अपने बॉडी पे कितना लोडिंग हो रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग प्लेयर्स को भी बोलते हैं कि आपको ये चीजें मॉनिटर करनी है. Okay, so यहाँ पे there's another question that I want to ask कि डाइट या द थिंग्स दैट वी कंज्यूम, ठीक है, वो कितना वाइटल रोल प्ले करता है इंजरी प्रिवेंशन में और रिकवरी में. ऑफ कोर्स I think diet is also very very important. So as you rightly said,
again, I have seen a trend in Indian cricket that they are getting better and better every day with their diet. You know, there are good experts who are coming into picture. If we are considering our Indian players, even at the state level, पहले न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ एक सेशन होता था लेट्स से पूरे साल में एक अकेडमी, तो आजकल न्यूट्रिशनिस्ट ज्यादा अवेलेबल होते हैं. तो न्यूट्रिशनिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है that is undebatable. So it is going to increase a lot. Nutrition is obviously important. आपका game is going to get played over a very long time. तो आपके fatigue levels की वजह से जो injuries होते हैं वो आपको prevent करने हैं. तो आपका diet overall भी अच्छा होना चाहिए. And during the sport, you know, while playing, कि जो आपके हाइड्रेशन ड्रिंक्स होते हैं या फिर आप बीच में आपका जो ब्रेक होता है तो उसमें आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, गेम से पहले आपने क्या खाया है वार्म अप से पहले, या फिर गेम के बाद कूल डाउन के अराउंड, या फिर उसके बाद आप क्या खा रहे हो. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ फोकस. आप अगर बैट्समैन हो आपको हर एक बॉल पे फोकस करना है. आप बॉलर हो आपको हर एक बॉल अपने जो पॉइंट है उसी पे डालना है. मराठी में हम लोग मुंबई में बोलते हैं आपको टप्पे पे डालना है. तो if you are a batsman, every ball is important. If you are a bowler, every ball is important. आपको पता है फील्डिंग पोजीशन में आप खड़े हो तो आपके पास कितने बॉल्स आने वाले हैं, लेकिन आपको हर एक बॉल पे फोकस तो करना है बराबर. तो इट्स ऑल अबाउट फोकस इज वेल. तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपने अगर शुगर जिसमें ज्यादा है वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया है तो आपका शुगर का फ्लक्चुएशन चेंज हो जाता है ब्लड लेवल में. आपका फोकस हट जाएगा, आपका फोकस स्टेडी नहीं रहेगा. तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. बाकी सबको ही पता है कि स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है, कि आपका मसल बिल्डिंग है, आपका ओवरऑल आपका ओवरऑल बॉडी न्यूट्रिशन है. बट जस्ट आप क्रिकेट स्पेसिफिक बोलेंगे तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, आपके ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए, तो आप उसके अराउंड कैसे काम करोगे. तो ये सारा जो प्लानिंग होता है ना, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम है, जिसको अगर क्रिकेट में एक्सपीरियंस है, क्रिकेटर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, तो इट्स मच बेटर. बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट में भी आपने अगर देखा होगा कि कुछ लोग किसी एक स्पोर्ट के साथ ज्यादा काम करते हैं तो उनको उसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से होता है. So yes, diet plays a huge role in injury prevention as well. Perfect. And in your performance, overall performance. Great. I also have one more question again, very similar to this one, the one which I asked you. What's a balanced diet for a cricketer? उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितना प्रोटीन का परसेंटेज होना चाहिए, शुगर लाइक यू राइटली सेड वो तो इट्स अ कंप्लीट नो. ये थोड़ा मैं फीवर से ज्यादा मैं न्यूट्रिशन की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ. That's what I was thinking, Vishal. I will not go into like real depth of it because as I said, there was a time कि हम लोग advices देते थे player को, but आज का reality अलग है कि there are very good sports nutritionists available, and cricket maybe there are a couple of people who are really working extensively with cricket and they are wonderful with their job. तो अगर मैं बहुत ज्यादा बात करना स्टार्ट करूंगी न्यूट्रिशन के लिए तो it won't be justifiable कि physio sports nutrition के बारे में बात करें, because it's a very specific field now, and you'll be very surprised there is so much of depth to it. It is not really superficial. So I'll try and get a nutritionist to answer that question, but if you had to give a gist, एक summary, if you had to summarize it कि ये ऐसा होना चाहिए. So that will be also very difficult for me. I'll tell you because आजकल ना न्यूट्रिशन के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं डाइट के, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट फॉलो करते हैं, या कुछ लोग हाई फैट लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं. तो हमारे क्रिकेटर्स में देयर आर फ्यू हु फॉलो सच काइंड ऑफ डाइट depending on their needs, depending on what they want to experiment with. So there are different people. This is very difficult to generalize as such. Okay. Yeah, I mean, like proteins are very important.
And if you see our community, as Indian community, some of the communities are heavily vegetarian. तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है हमें. मतलब मैं फिजियो हूँ या फिर ट्रेनर्स है, उनको काफी प्रॉब्लम आता है ये चीजें उनको एक तो कन्विंस करने के लिए कि आप एटलीस्ट एग्स खाओ, या फिर सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फिर उसी चीज के लिए. अगर वो लैकिंग है तो देन वी कैन सप्लीमेंटेशन. So something like routines is like really important, and I can make a generalized point that okay, important for each and everyone in cricket. या फिर हाइड्रेशन जैसे मैंने बोला, because the game goes for a very long time. या फिर जब आपके प्रैक्टिस सेशंस है वो भी काफी लंबे चलते हैं. आपने देखा क्रिकेट के प्रैक्टिस सेशन कैन गो ऑन फॉर like 3 hours, sometimes more than that, including coaches meeting. It can be more than that also sometimes. So